students, I'm Sonal Shreya, welcoming you to the channel of Super Grads by Top Rankers. As you all already know that the registration for NMI MS NPAT has already begun. So this video is going to be really very important for all those candidates, those who will be filling out this form. We will quickly see how we can register for NMI MS NPAT 2023. But before that, let's quickly check the eligibility criteria first. So as you can see here, qualification, they're asking for 10 plus 2 or equivalent examination with mathematics or statistics mandatory as a subject in your class 12. So the students, those who have mathematics and stats in class 12 can apply for NMIMS NPAT 2023. Now, coming on marks, minimum of 50% aggregate marks in 10 plus 12 or equivalent examination for BBA, BCom honors, BSc Finance, BBA Branding and Advertising. So minimum 50% of marks they are asking, and then the maximum age is 25 years on which you can apply. Now, for filling the application form, we have to go through this link. That's the official link through which you'll be registering here. Now, coming on to the process for application form 2023, the application process is divided into 4 stages. The stage is to register and make your NMI-MS account. Now, fill the online application form, then make the payment, and then finally to schedule your exam. तो सबसे पहले हमको registration करना है. Registration करके NMIMS पे account अपना बनाना है, and then they'll be sending us the credentials. After you have registered, they'll be sending you an email with your credentials. Next है, we'll have to fill the application form, उसके बाद payment करना है, then finally you have to schedule your exam. Note, candidate has to select one option to register and can select multiple options in the application form. अब जब हम registration करेंगे, सबसे पहला ऑप्शन क्या आएगा आपको कि प्रोग्राम सिलेक्ट करना है. हियर सेलेक्ट प्रोग्राम एंड देन सिलेक्ट योर कोर्स. तो प्रोग्राम और कोर्स एक ही होगा जब आप रजिस्ट्रेशन में सिलेक्ट करेंगे. बट देन व्हेन वी विल बी फिलिंग द फॉर्म, उस समय मल्टीपल प्रोग्राम्स एंड देन स्कूल्स के लिए वी कैन अप्लाई. दैट्स एब्सोल्युटली पॉसिबल. नाउ वंस वी हैव रजिस्टर्ड फॉर एनएमआई एमएस एनपैट 2023, देन विल बी फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म. एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए फर्स्ट दिस पेज विल अकर. ठीक है, then we have to click off this icon which is continue. After this हमारे पास ये प्रोसेस है which is personal details. अभी हम personal details fill करेंगे, then parents detail, then academic details and then the program preference. Fine. So the application form is organized into 4 sections. ये 4 sections ये है जो मैंने आपको अभी just बताए हैं. Every mandatory field is marked by star. तो जो भी फील्ड में आपको स्टार मार्क दिख रहा है, पर्टिकुलरली दीज आर द रिक्वायर्ड फील्ड्स, वो हमें फिल करना है, अदरवाइज एप्लीकेशन फॉर्म आगे कंटिन्यू नहीं हो पाएगा. They must be completed accurately for your application to be considered. That we have to do, obviously. Candidates are advised to check the information handout as per below link before you proceed the online registration form for all details including eligibility criteria. तो पहले ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वहां मेंशन रहेगा. यू हैव टू चेक द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू मूव फॉरवर्ड फॉर द प्रोग्राम्स. अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो फिर वो प्रोग्राम फिलअप नहीं कर पाओगे. लाइक मैथ्स एज अ सब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड फॉर बीकॉम ऑनर्स बीबीए, और अगर आपके पास मैथ्स नहीं है, यू कैन नॉट प्रोसीड फॉर द फर्दर एप्लीकेशन. If at any stage it is found that a candidate does not satisfy the eligibility criteria or the information furnished by him or her is incorrect, his or her application for the admission to the program, even if selected and fees paid, will be rejected. तो अगर आप जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, make sure that the information is accurate. कोई भी गलत इंफॉर्मेशन हमें फॉर्म में फिल करनी ही नहीं है. Registration fees not refundable. तो in case अगर आप सोच रहे हो कि मेरा फीस रिफंड हो जाएगा, तो रजिस्ट्रेशन फीस इज नॉट रिफंडेबल एट ऑल. नाउ वी विल बी फिलिंग आवर पर्सनल डिटेल्स, जो कि बहुत केयरफुली स्टूडेंट्स अब भरना पड़ेगा. जिस फॉर्मेट में ये पर्टिकुलरली नोट में मेंशन करें, मेक श्योर दैट यू आर कंसिडरिंग दोस नोट्स. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो फर्स्ट आपको अपलोड करने बोलेगा योर फाइल. ठीक है, जिसमें आपको पिक्चर बोल रहा है अपलोड करने, दैट यू हैव टू अपलोड. देन make sure this format में ये बोल रहा है plus the size is as per their requirements. Then they'll be asking you जो personal details है, like first name, last name, gender,
ब्लड ग्रुप, डेट ऑफ बर्थ, ये सब सब कैटेगरी। कैटेगरी आप वही फिल करना अगर आपके पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, तभी आप कैटेगरी, पर्टिकुलर कैटेगरी लाइक SC ST OBC जो भी है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, देन यू कैन फिल द कैटेगरी एरिया। आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ में मैं लिजिट बोलूंगी कि ट्राई टू फिल आधार कार्ड। और कुछ आप फिल कर सकते हो, जो भी ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे, बट देन आधार कार्ड इज अ काइंड ऑफ थिंग विच एवरीबडी हैज, एंड देन इट्स वेरी वेल, मतलब अवेलेबल सबके पास रहता है। और जो पर्टिकुलर आइडेंटिटी प्रूफ हम यहाँ पर फिलअप करेंगे, सेम आइडेंटिटी प्रूफ हमें एग्जाम सेंटर में भी अपने साथ कैरी करके जाना है। Fine. Then they'll asking you for contact details, then correspondence address details you properly fill करो. Then we have to move for the next information जो कि parents details है. Now we will be filling our personal details जो कि बहुत carefully students अब भरना पड़ेगा. जिस फॉर्मेट में ये पर्टिकुलरली नोट में मेंशन करें, मेक श्योर दैट यू आर कंसिडरिंग दोज नोट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट तो आपको अपलोड करने बोलेगा योर फाइल, ठीक है, जिसमें आपको पिक्चर बोल रहा है अपलोड करने, दैट यू हैव टू अपलोड। देन मेक श्योर जिस फॉर्मेट में ये बोल रहा है प्लस द साइज इज एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स। देन they'll be asking you जो पर्सनल डिटेल्स है लाइक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, ब्लड ग्रुप, डेट ऑफ बर्थ, ये सब सब कैटेगरी। कैटेगरी आप वही फिल करना अगर आपके पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, तभी आप कैटेगरी, पर्टिकुलर कैटेगरी लाइक SC ST OBC जो भी है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, देन यू कैन फिल द कैटेगरी एरिया। आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ में मैं लिजिट बोलूंगी कि ट्राई टू फिल आधार कार्ड। और कुछ आप फिल कर सकते हो, जो भी ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे, बट देन आधार कार्ड इज अ काइंड ऑफ थिंग विच एवरीबडी हैज, एंड देन इट्स वेरी वेल, मतलब अवेलेबल सबके पास रहता है। और जो पर्टिकुलर आइडेंटिटी प्रूफ हम यहाँ पर फिलअप करेंगे, सेम आइडेंटिटी प्रूफ हमें एग्जाम सेंटर में भी अपने साथ कैरी करके जाना है। Fine. Then they'll asking you for contact details, then correspondence address details you properly fill करो. Then we have to move for the next information जो कि parents details है. Now coming on to parents detail, बहुत specific information ज़्यादा नहीं मांग रहे, just name, complete name of your father and mother, उनका email ID, ये properly ये बोल रहे हैं, like see here, father's title first name last name, mother's title first name last name, बस we are asking you this only. Now coming on to academic details, it's very important to fill it carefully. They're asking you class 12 board, examination state and your school name. So these all are the required field, किस बोर्ड से हो, CBSE ICSE जो भी है वो फिल करना है। एग्जामिनेशन स्टेट, किस स्टेट से अपियर किया आपने, क्लास सॉरी 10th का एग्जामिनेशन स्टेट, एंड देन क्लास 10th स्कूल नेम। Class 10 का details में they're asking you for enrollment and seat number, passing month, passing year, passing month obviously मतलब most सबका होता है मई या जून में ही होता है। passing year, point और grade point। अगर ग्रेड पॉइंट जैसे पहले CGPA सिस्टम था, तो जिसका CGPA पॉइंट आया है वो वहां मेंशन करेंगे, लाइकवाइज परसेंटेज आया तो परसेंटेज मेंशन करेंगे। obtain मार्क्स, टोटल मार्क्स, एंड देन फाइनली द परसेंटेज। ये सारी फील्ड्स रिक्वायर्ड एंड मैंडेटरी है, और बहुत केयरफुली फिल करना स्टूडेंट्स, एक पॉइंट इधर से इधर नहीं होना परसेंटेज में। ये थोड़ी थोड़ी माइन्यूट डिटेल्स अगर हम देखेंगे तो फाइनली माय एडमिशन प्रोसेस में कोई आगे फर्दर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट देन दिस शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल फिलिंग द फॉर्म। क्लास 12 की डिटेल सेम, स्टेटस, बोर्ड, एग्जामिनेशन स्टेट पर्टिकुलरली, देन योर स्ट्रीम, जिस स्ट्रीम से हो आप, school name, and then whether you have taken math, statistics or statistics in your class 10th 10 plus 2 exam, which is mandatory। NMIMS में maths और stats as a subject is mandatory। उसके बाद अगर ये नहीं है, then you cannot apply for NMIMS। But then we have BBA in branding and advertising, जहाँ पर they're not asking you for maths as a subject in class 12। After you have filled your academic details, then this page will appear where program preferences हमें fill करनी है। तो as per ये पर्टिकुलरली बताएगा कि आप किस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो। जितना भी आपने फिल किया है एकेडमिक डिटेल्स, उसके अकॉर्डिंगली दिस विल सजेस्ट यू कि आप पर्टिकुलरली किस किस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो। सो ऑल द प्रोग्राम्स विल बी शोन हियर, एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू फिल द फॉर्म फॉर प्रोग्राम प्रेफरेंसेस। नाउ
Based on your academic background and eligibility, you are eligible to apply for the following programs. अब ये बोल रहा है 5 program preference in School of Commerce, 3 program preferences in School of Economics, 1 program preference in the School of Branding and Advertising, School of Liberal Arts Center for International Studies, School of Entrepreneurship and Family Business Management. तो इन प्रोग्राम के लिए I am eligible. Now, लेट्स अज्यूम स्कूल ऑफ कॉमर्स. आपको पर्टिकुलरली अब ये समझना है कि व्हाट इज योर प्रोग्राम प्रेफरेंस. अगर मुझे बीबीए करना है तो माय प्रोग्राम प्रेफरेंस फर्स्ट विल बी बीबीए. देन सेकंड प्रेफरेंस में जो आपको बीबीए के अलावा इफ यू डोंट गेट एनी प्लेस एनी सीट फॉर बीबीए, उसके बाद का आपको ऑल्टरनेट ऑप्शन क्या होगा, लाइक बीकॉम ऑनर्स. सो अकॉर्डिंगली ऐसे हमें फिल करना है. So my first preference was Bachelor of Business Administration. Second is BCom Honors, and then the third preference is BSc Finance. अब इसमें बोलेगा choose your school. School specifically School of Commerce, School of Liberal Arts. तो जिस भी प्रोग्राम के लिए आप enroll कर रहे हो उसका पर्टिकुलर स्कूल हमें फिल करना है थ्रू दिस. Choose your program preference. प्रोग्राम प्रेफरेंस में ऑब्वियसली अगर कैंपस देखा जाए तो मुंबई इज द बेस्ट कैंपस. तो कोई भी प्रोग्राम आप ले रहे हो, द फर्स्ट प्रेफरेंस विच एनी स्टूडेंट शुड फिल इज द मुंबई कैंपस. तो वो तो हमें फिल करना है. नेक्स्ट, तो मेरा प्रेफरेंस देखो किस टाइप का है. अगर मैंने बीबीए के लिए प्रेफरेंस फिल किया है तो फर्स्ट प्रेफरेंस इज फॉर मुंबई. मुंबई के लिए प्रेफरेंस फिल किया है, अब अकॉर्डिंगली सी. नेक्स्ट इज बीकॉम ऑनर्स फ्रॉम मुंबई. थर्ड इज बीएससी फाइनेंस फ्रॉम मुंबई. अब बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम बेंगलुरु को मैंने फोर्थ प्रेफरेंस दिया है, एंड देन बीकॉम ऑनर्स फ्रॉम बेंगलुरु. तो मुझे कैंपसेस में मुंबई और बेंगलुरु ही चाहिए फॉर अदर प्रोग्राम्स, जितने प्रोग्राम्स मैं फिल किया ऑप्शन के साथ. स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स में एक ही है विच इज स्कूल ऑफ आर्ट्स लिबरल आर्ट्स इन मुंबई. तो ये पर्टिकुलरली मैंने यही फिल किया. स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, School of Economics, BSc Economics, Mumbai, BSc Economics, Bangalore, and then the third priority will be Navi Mumbai. तो priority wise है या campus wise ही मैंने fill किया है. तो अगर आप ये option fill करना चाहते हैं तो you can go for it, no problem at all. Then School for Branding and Advertising, SOBA. Program preference एक ही है, which is Branding and Advertising, which is in Mumbai. तो हमें यही campus fill करना because the only program which SOB is offering is BBA Branding and Advertising for UG programs. Then Center for International Studies, which is BBA and International Business, which is obviously Mumbai. Now coming on to the last, School of Entrepreneurship and Family Business Management, program preference, obviously BBMM from Mumbai campus. Do you wish to retake? अब ये बहुत important criteria है, इसको अच्छे से समझना आप. Do you wish to retake the above selected test? अब देखो हमें अटेम्प्ट्स कितने मिल रहे हैं, फ्रॉम 1 मेन अटेम्प्ट 2 अदर अटेम्प्ट और मिल रहे हैं. लेकिन हमें ये समझना है कि हम एक मेन अटेम्प्ट के साथ 2 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट्स दे सकते हैं, बट फाइनली जो हाईएस्ट मार्क्स होगा वही कंसिडर किया जाएगा. तो अब ये कंफ्यूजन में मत रहना कि मैंने 3 दे दिए, मेरे ये खराब गया, मेरा सेकंड वाला अटेम्प्ट खराब गया. नहीं, मैक्सिमम आप अटेम्प्ट मेन अटेम्प्ट के बाद 2 अटेम्प्ट और दे सकते हो, लेकिन हाईएस्ट स्कोर ही कंसिडर किया जाएगा आपका. नाउ दिस इज मैंडेटरी. आपको अगर अटेम्प्ट्स फिल करना है तो यू हैव टू फिल यस या नो. यस या नो तो फिल करना है. नाउ हाउ मेनी टाइम्स डू यू वांट टू अटेम्प्ट फॉर रीटेक? तो अगर आप अभी 1 अटेम्प्ट कर दोगे तो बाद में आपको 2 अटेम्प्ट नहीं मिलने रहेंगे. तो फर्स्ट मेन अटेम्प्ट के बाद अगर आपका फर्स्ट जो री अटेम्प्ट है वो भी खराब हो गया, देन फिर आप सेकंड अटेम्प्ट नहीं दे सकते. तो मैं सबको सेफ साइड के लिए यही बोलूंगी कि 2 मैक्सिमम है तो 2 फिल कर दो. हाँ, फीस विल बी रिक्वायर्ड. हर एक अटेम्प्ट के लिए आपको जो प्रॉपर फीस इन्होंने मेंशन किया अपने हैंड आउट पे, ये तो आपको फिल मतलब पे करनी पड़ेगी. बट देन दिस इज अ सेफ एरिया. तो मैं सबको बोलूंगी कि 2 अटेम्प्ट्स एक्स्ट्रा अगर दे रहे हैं तो लेने में कोई हर्ज नहीं है. फाइन. एंड देन आफ्टर ऑल, yes, I declare that I've read the terms and conditions. ये अब terms and conditions है जो properly the right to carry out the admission process for NMI MS NPAT 2023 lies
with the SVKMs NMIMS, ये प्रॉपर डिटेल्स जो मेंशन है ये पढ़ के हमें अच्छे से I should declare that I've read the terms and conditions stated before above and agree to abide by them. Then I have to click on this option and then finally submit. तो ये पूरा रजिस्ट्रे मतलब एप्लीकेशन प्रोसेस है. एक एक इंफॉर्मेशन माइन्यूट माइन्यूट डिटेल्स हमें देखनी है स्टूडेंट. बिल्कुल भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है जस्ट मेंशन इन द कमेंट बॉक्स बिलो. और जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं सुपर ग्रेड्स के, कनेक्ट विद मी, सो वील बी रिजॉल्विंग ऑल योर क्वेरीज. इसके बाद तो मुझे नहीं लगता कोई क्वेरी होनी चाहिए, बट देन जितना भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन या फील्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सोच समझ के हमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है. दैट्स ऑल. फाइनली द थिंग्स टू रिमेंबर व्हाइल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म. फर्स्ट, रजिस्ट्रेशन फॉर्म विद रिक्वायर्ड डिटेल्स. डिटेल्स में कोई भी स्टूडेंट्स गलती की गुंजाइश तो होनी भी नहीं चाहिए. देन डिटेल्स लाइक पर्सनल इंफॉर्मेशन, एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, जितनी भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो, मेक श्योर यू हैव योर मार्कशीट्स विद यू. मार्कशीट में अगर आपको ग्रेड पॉइंट को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में भी, तो वो प्रॉपरली कन्वर्ट करके पॉइंट में, लाइक 76.23, 76.48, इसमें भी डिफरेंस आता है. तो ये प्रॉपरली कैलकुलेट करके तब ही फिल करना. अदरवाइज ask anybody who knows about it. अपलोडेड अपलोड आज डॉक्यूमेंट्स. डॉक्यूमेंट्स जो ये मांग रहे हैं और जिस फॉर्म में मांग रहे हैं, जेपीजी फाइल मांग रहे हैं, जेपीईजी फाइल मांग रहे हैं, जिस पर्टिकुलर ये फील्ड में मांग रहे हैं, एंड जितना लाइक केबी में 512 केबी का ही तक अपलोड हो सकता है. तो ये पर्टिकुलरली समझो और अच्छे से फिल करना जो अपलोड डॉक्यूमेंट करने ये बोल रहे हैं. देन कैंडिडेट्स ऑफ रिजर्व्ड कैटेगरी. Category students, if you have the proper documents with you, then obviously apply for the reserved category area while filling the application form, जो मैंने पहले ही बता दिया आपको. Seek the printout of filled application form. Make sure that you have a printout of your filled application. It's very important. हमेशा एक अपने पास हर एक स्टूडेंट को रखना चाहिए. That's all for the video, students. I hope अब इस वीडियो के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी while filling the application form for NMIMS NPAT 2023. I wish you all the best to all the candidates, those who will be appearing for NPAT 2023. All my best wishes to them.